Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 4, the first civilization in India. Before starting the chapter, let's have some quick view of the key points. What is civilization? In this chapter, we will read about what is civilization, about the Indus Valley civilization, about the economic, society, and religious condition of Indus Valley civilization, and what led to the decline of Indus Valley civilization. These are the important points which we will discuss in this chapter. As you all know, students, this Indus Valley civilization was the first civilization with developed well-planned cities and town. Indus Valley civilization इंडिया की फर्स्ट civilization थी and was a very well-planned cities and town. वहाँ के जो cities थे बहुत well-planned civilization थी, अच्छी ढंग से बनाई थी. Now we will discuss about in this chapter. Growth of civilization. When early humans started cultivation, slowly they started growing more crops. This extra production was known as surplus. Now what is surplus? The extra production of crops is known as surplus. But some people choose other work than agriculture, such as pottery making, trading, etc. कि कुछ लोग तो एग्रीकल्चर करते थे और कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के अदर वर्क करना स्टार्ट किया, पॉटरी बनाना, वीविंग करना, ट्रेडिंग करना. व्हेन पीपल स्टार्टेड डाउन डूइंग अदर वर्क, विलेजेस स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू टाउन. कि जब लोगों ने अदर वर्क करना शुरू किया, देन द विलेजेस जो थे दे स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू टाउन. वो किस में ग्रोइंग होने लगे, किस में कन्वर्ट होने लगे? टाउन्स में. पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स एंड दस emerge the trading system. ट्रेडिंग मीन्स व्यापार. कि व्यापार का जो सिस्टम था वो कैसे शुरू हुआ? पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्ट. कि लोगों ने जो अपना सरप्लस प्रोडक्ट था, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, सरप्लस मीन्स जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता, जो एक्स्ट्रा उत्पादन था, उसको एक्सचेंज करना शुरू किया एक दूसरे से और इस तरह से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई. नाउ एज यू कैन सी a word civilization, a civilization is given here. What is the meaning of civilization? क्या मतलब होता है civilization का? Civilization means होता है सभ्यता. What is civilization? सभ्यता. हिंदी में हम इसे कहते हैं सभ्यता. Now definition of civilization is the stage of human development which is considered the most advanced stage of social development. ह्यूमन बीइंग की वो स्टेज जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा डेवलप है, उसकी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, उस तरह की सभ्यता को हम कहते हैं वेल प्लान्ड, वेल डेवलप्ड सोसाइटी इज नोन एज सिविलाइजेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट द इंडस वैली civilization. A civilization developed in the northern part of Indian subcontinent known as Indus Valley civilization. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई जिसे हमने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस सिविलाइजेशन डेवलप नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस. और ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस. दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ द फर्स्ट cities. इंडस वैली civilization is also known as Harappan civilization because it was discovered first in 1921 at Harappa. Indus Valley civilization को हम हरप्पन civilization के नाम से भी जानते हैं and it was discovered first 1921 at Harappa. Harappa now located in Pakistan. हरप्पा आज कहाँ है? पाकिस्तान में है. Was one of the oldest cities discovered in the subcontinent. It was discovered by R.B. Dayaram Sahani, an Indian archaeologist. Who discovered Harappan civilization? R.B. Dayaram Sahani, an Indian archaeologist. Mohenjo-daro literally mean mound of death. Another city is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means, Mohenjo-daro का mean होता है mound of death. This city was discovered by R.D. Banerjee and 1922. कि मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ 1922 में एंड डिस्कवर्ड बाय R.D. बनर्जी.
Now, extent of the civilization. By seeing the excavation sites, we can easily say that Harappan civilization was spread over a wide area. कि हम हड़प्पन सिटी बाय सीइंग द एक्सक्लेवेशन मीन्स होता है जो हमें अवशेष मिलते हैं खुदाई में, कि उन एक्सक्लेवेशन साइट्स को देखकर, जो खुदाई में साइट मीन्स होता है प्लेसेस, कि उन जगहों को देखकर हम इजीली कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड थी, फैली हुई थी. इट कवर्ड द पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान. In India, it covers the area of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat. Now, other important cities. Although now moreover nearly 1100 sites are found, but some of the other important sites of Harappan sites are Chanudaro, Kalibag, Lothal, Dhaluvira, Rakhigari, etc. These are some of the important sites of Harappan sites. The sites of Harappan was unknowingly damaged around 1850. हरप्पन साइट्स की कुछ जो साइट्स थी, कुछ प्लेसेस थी, वो अनलोइंगली, बिना अनजाने में लोगों से डैमेज हो गई. वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, जब वो लोग रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कनेक्टिंग लाहौर एंड कराची, जो रेलवे लाइन लाहौर एंड कराची को कनेक्ट कर रही थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फायर बिग ब्रिक वर डिस्कवर्ड इन द ruins ऑफ माउंट नियर बाय. कि उस कंस्ट्रक्शन में व्हेन दे वर कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइन, जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, खुदाई चल रही थी, तो वहाँ फायर बेग यानी पकी कोई ब्रिक्स मिली. ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटें. विच वर डिस्कवर्ड द ruins ऑफ माउंट, कि वो ruins थी, वो अवशेष थे, बचे हुए अवशेष थे हड़प्पन सिटी के. मैनी ऑफ दीज ब्रिक्स, कि उन ब्रिक्स में से कई ब्रिक्स को यूज़ किया गया जो सही सलामत थी. तो फाउंडेशन ऑफ रेलवे लाइन्स, की रेलवे लाइन की फाउंडेशन बनाने में उन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया. Now, what sets it apart? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सी चीज़ें हैं जो उसे अपार्ट करती हैं, अलग करती हैं दूसरी सभ्यताओं से. इंडस वैली सिविलाइजेशन was characterized by certain common features which set it apart from all other cultures of that time. कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं जो उसे अलग, बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, at almost every site, archaeologists have found a unique red pottery painted with the black design. कि लगभग हर साइट पे, साइट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, साइट मीन्स प्लेस, कि ऑल ईच एंड एवरी प्लेस आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड यूनिक रेड पॉटरी. हर जगह उन्हें कुछ यूनिक मीन्स होता है समथिंग डिफरेंट, जो बिल्कुल सबसे अलग हो. कुछ ऐसे पॉटरी के पीसेस मिले हैं विद ब्लैक डिज़ाइन नोन एज, जिन पे ब्लैक कलर की रेड पॉटरी है और जिसपे ब्लैक डिजाइन है, नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर्स. सम स्टोन वेट्स वर देयर, सील्स वर देयर, एंड इंडस स्क्रिप्ट एंड कॉपर टूल्स वर ऑल्सो फाउंड. लेट अस लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द फर्स्ट वन इज टाउन प्लानिंग. The cities were built according to the well scientific plan. हड़प्पन cities के जो टाउन थे वो well planned scientifically method से यूज़ की टाउन प्लानिंग थी. There was an excellent planning in the construction of city. City में जो कंस्ट्रक्शन था excellent planning के साथ किया गया था. Cities were divided into two parts. City को two parts में divide किया गया. The high citadel in the west and lower town in the east. जो वेस्ट का पोर्शन था उसे हाई एरिया था थोड़ा, उसे सिटाडेल नाम दिया गया. एंड द लोअर टाउन इज द ईस्ट पोर्शन दैट इज नोन एज लोअर टाउन. नाउ सिटाडेल. Citadel was an area where mostly the members of ruling class or rich people used to live. As we discussed, city is divided into two parts. City को two parts में divide किया. First one is citadel. हाई जो एरिया था उसे नाम दिया गया. वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी इज सिटाडेल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी इज लोअर टाउन. तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है सिटाडेल इज द पोर्शन एरिया वेयर मोस्टली द रूलिंग क्लास पीपल यूज टू लिव. जो रूलिंग क्लास पीपल थे यानी रिच पीपल थे, जो शासन करने वाले लोग थे, दे यूज टू लिव इन द एरिया सिटाडेल.
and the lower town was an area where common people used to live. और लोअर टाउन वो एरिया था जहाँ पे कॉमन पीपल यूज टू लिव, कॉमन साधारण जो जनता थी वो लोअर टाउन में रहा करती थी. नाउ द ग्रिड सिस्टम. Grid system was one of the remarkable feature and was not found in other civilization. Grid system जो था एक important feature है Indus Valley civilization का and it is not found in other civilization. Now what is grid system? क्या है grid system? With the help of diagram you can easily understand this system. Now look at the diagram. वन मेन स्ट्रीट वो वेरी वाइड, जो मेन स्ट्रीट थी, मेन रोड थी वो बहुत वाइड थी एंड कनेक्टेड विथ लेन्स. जो मेन रोड थी वो छोटी छोटी गलियों से लेन्स से कनेक्टेड थी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. और ये सारी गलियां मेन रोड से कनेक्ट होती थी एंड दे आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल, और वो एक राइट एंगल फॉर्म कर रही थी एज यू कैन सी इन द डायग्राम. दिस सिस्टम इज नोन एज ग्रिड सिस्टम. इस सिस्टम को कहते थे ग्रिड सिस्टम. पीपल यूज स्टैंडर्डाइज्ड बर्न ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी एज बिल्डिंग मटीरियल फॉर हाउसेस. लोग अपना घर बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की बर्न ब्रिक्स यूज करते थे. The houses of varying size, often of 2 or more stories, consist of rooms constructed around a rectangular courtyard. In almost all cities, every house had its own courtyard and bathroom. In Kalibangan, many houses had their own wells. कि हाउसेज ऑफ वेरिंग साइज, हाउस जो थे वो सभी एक जैसे नहीं थे. दे आर वेरी, वेरी मीन्स होता है डिफरेंट साइज, कि किसी के हाउस जो थे 2 स्टोरी थे, किसी के हाउस ओनली 1 रूम इज देयर एंड समवन इज हैविंग मोर स्टोरीज. किसी की बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स थी, कंस्ट्रक्शन एरिया बहुत बड़ा था. रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड वॉज देयर एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर हैविंग देयर बाथरूम ऑल्सो. इन कालीबंगन मेनी हाउसेज आर दे आर हैविंग देयर ओन वेल्स. बहुत सारे घर ऐसे मिले हैं जिनमें खुद ने घर के अंदर कुएं बनाए हुए हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेनेज सिस्टम. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेरी इम्प्रेसिव. ड्रेनेज सिस्टम जो था, ड्रेनेज सिस्टम हम कहते हैं जो पानी का सिस्टम होता है, नालियों का सिस्टम होता है, बहुत ही इफेक्टिव था, वेरी इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम. वाटर फ्लोड फ्रॉम हाउसेज टू द ड्रेन्स. वाटर जो फ्लो होता था हाउसेज से डायरेक्टली टू द ड्रेन्स, वो सीधा नालियों में जाता था. द ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन्स. सो बाय द ड्रेनेज सिस्टम वी कैन से that the Harappans were aware towards the health and cleanliness. कि ड्रेन्स जो थी उनकी नालियाँ थी, दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन. कवर्ड थी नालियाँ उस समय. एंड बाय सीइंग द ड्रेनेज सिस्टम, उसको देखकर हम वी कैन इजीली से कि दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड क्लीनलीनेस. नाउ नेक्स्ट वन इज आर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स. In this paragraph, we will read about some important buildings found in the Harappan Indus Valley civilization. First, we will read about the Great Bath. The Great Bath at Mohenjo-daro. It was a big bathing tank made up of burnt bricks coated with the plaster and made water light with natural tar. It had steps on each side. The bath was used for ritual bathing. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेट बाथ कि अ ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. ग्रेट बाथ मिला है हमें मोहनजोदारो में. इट वॉज अ बिग बाथिंग टैंक. एक ये बहुत बड़ा बाथिंग टैंक है एज वी आर यूजिंग पूल्स टुडे, जो हम पूल्स जिसे हम कहते हैं, स्विमिंग पूल टाइप का एक बाथिंग टैंक है. विच वॉज मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक, जो पक्की ईंटों से बना हुआ है और उसके चारों तरफ प्लास्टर है. और इट हैज स्टेप्स, और उनके दोनों तरफ से इट हैड स्टेप्स ऑन ईच साइड, जो चारों तरफ से है ना स्टेप्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसमें नीचे उतरने के लिए. और ऐसा माना जाता है कि ये जो इतना बड़ा पूल मिला है, तो बाथ वॉज यूज फॉर रिचुअल बाथिंग, कि हो सकता है उस समय कोई रिचुअल्स कोई परफॉर्म किए जाते होंगे, कोई पूजा पाठ का जो था उस समय उस बाथिंग टैंक को बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा. नेक्स्ट इज ग्रेनरी. As the name suggests, granary, grain means anaj.
तो ग्रेनरी क्या है? अ बिग ग्रेनरी वॉज ऑल्सो फाउंड. इट वॉज यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. ग्रेनरी इज अ प्लेस विच इज यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन होता था, एक्स्ट्रा अनाज का उत्पादन था, उसको स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में. नाउ नेक्स्ट वन इज डॉकयार्ड. What is dockyard? Dockyard is a place where ships are loaded and unloaded. Dockyard वो place है जहाँ पे ships को load और unload किया जाता था. तो लोथल में एक dockyard discover किया गया है. It was an important port city of Indus Valley civilization. लोथल जो था उस समय important port city of Indus Valley civilization. At Kalibangan and also at Lothal, fire altars have been found which indicate that some kind of sacrifice was performed here. कि कालीबंगन में, लोथल में some fire altars. Altars means होता है holy space for conducting religious ritual. कि रिलीजियस धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए एक पवित्र सा स्थान बनाया गया है, उसको नाम दिया गया फायर अल्टर्स. तो कालीबंगन में फायर अल्टर्स मिले हैं विच इज फाउंड, जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करना मीन्स इशारा करते हैं कि सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस वॉज परफॉर्म देयर, कि उस जगह पर कुछ तरह के सेक्रीफाइस यानी बलिदान या लोगों की बलि दी जाती रही होगी उस स्थान पर. इकोनॉमिक कंडीशन. First, we'll discuss about the agriculture. The Indus Valley was fertile due to the annual inundation of the Indus Valley. Walls made up of burnt bricks for protection, snow that took place annually. The alluvial soil carried by the river Indus and its tributaries made the soil of the region very fertile. First, we'll discuss about the agriculture in the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is a very fertile land because due to the annual rainfall. Rainfall बहुत अच्छी थी, साल साल बारिश होती थी और इसलिए लैंड बहुत फर्टाइल थी. Then alluvial soil was soil carried by the river. Alluvial soil was there. Alluvial soil थी वहाँ पे because Indus River carried the soil. Indus River अपने साथ बहुत सारी जो मिट्टी लेकर आती थी, वो बहुत फर्टाइल लैंड थी. And this region was very fertile. ये जो पूरा एरिया था बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया था. Agriculture was the main occupation of the people living in the countryside. कि एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था इंडस वैली पीपल का. They grew crops and reared animals. इसके साथ साथ वो क्रॉप ग्रू करने के साथ साथ एनिमल्स को भी रेयर करते थे, जानवरों को पालते थे. The crops they grew wheat, barley, rice, fruits, pulses. हरप्पन्स were first to grow cotton. हरप्पन्स वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन को ग्रो किया. People sowed seeds in the flood plains in November and they ripened them in the harvest in April. कि लोग नवंबर में सीड्स सो किया करते थे फ्लड प्लेन्स में, जो एरिया वन था फ्लड का बाढ़ वाला एरिया, वहाँ पे नवंबर में दे sowing their seeds and they harvest the crop in the month of April. Now many of the Harappan site fell in the low rainfall area and it is likely that irrigation was necessary for cultivation. कि बहुत सारी हरप्पन साइट्स ऐसी थी जो लो रेनफॉल वाले एरिया में थी, जहाँ कम बारिश हुआ करती थी, और वहाँ पे जहाँ कम बारिश होती है वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें इरिगेशन की, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है. इरिगेशन वॉज नेसेसरी फॉर कल्टिवेशन. It is probably that farmers had system to divert the water from the river and stored it to be used for watering the plants and crops. कि ऐसा माना जाता है कि फार्मर्स के पास उस समय ऐसा सिस्टम रहा होगा कि वो पानी को डाइवर्ट कर सकें, पानी को स्टोर कर सकें, उससे डाइवर्ट कर सकें अपने क्रॉप्स को वाटर देने के लिए. Wheat and barley were the main crops. As we have discussed, wheat and barley were the main crops cultivated by the Indus Valley people, and we find evidence of barley from the sites of Banavali. Date, peas, sesame and the mustard were also grown. It seems that rice was cultivated where rice husk embedded in clay and pottery have been discovered. Now we come to the next point, animal husbandry. The people of Indus Valley civilization practiced animal husbandry. Animal husbandry means domestication of animal, जानवरों को पालना.
They domesticated animals like oxen, goats, sheep, and pigs. Remains of horse also found. Some seals were found in which the picture of humped bull suggests that they were commonly found. वो लोग एनिमल्स को रियर करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, पालतू बनाते थे, जिसमें गोट, शीप, पिग्स वर कॉमनली फाउंड एंड सम सील्स वर ऑल्सो फाउंड. कुछ ऐसी सील्स मिली हैं जिसमें हॉर्सेस के पिक्चर्स मिले हैं. द पिक्चर्स ऑफ हम्प्ड बुल वॉज ऑल्सो देयर. हम्प्ड बुल की पिक्चर मिली है, सजेस्ट जो हमें बताता है कि दे वर कॉमनली फाउंड एनिमल. वो उस समय कॉमनली फाउंड किए जाते थे, कॉमनली देखे जाते थे. Okay student, that's all for this class. We'll continue our chapter in our next class from art and craft. I hope all of you understood the chapter. Thank you.